the basis of hybridization. Now, if you remember, I have already told you the hybridization thing, and मैंने आपको class 11 में एक trick दिया था कि अगर वो CH3 होगा, जैसे CH3Cl है, so वो जो कार्बन है वो CH3 है, इसका मतलब कार्बन का hybridization is sp3. Suppose it's CH3CH double bond CH2. So this CH2 है तो इसका मतलब वो sp2 hybridized है. So I already told you that if it's CH3 it has to be sp3, if it's CH2 it has to be sp2, if it's CH it has to be sp. So whatever the carbon is and it's attached to X, हम उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं. So if the carbon is sp3 hybridized, अब sp3 है तो उसका मतलब वो आपका नॉर्मल यानी एलिफैटिक यानी सैचुरेटेड ही होगा, क्योंकि sp3 के ऊपर sp4 तो कुछ होता नहीं है. sp3 is the maximum hybridization that you can have, right? and sp3 होने की वजह so sp3 होने की वजह से वो सैचुरेटेड रहता है, और उस बेसिस की वजह से हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये वाला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. आगे ग्रेजुअली हर चैप्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आएगा. लैब में मुझे आपको एक प्रैक्टिकल भी कराना है जिसमें मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को सेपरेट करना सिखाऊंगी. सो वी आर गोइंग टू टॉक एंड स्पीक एंड डिस्कस थिंग्स इन द कमिंग चैप्टर्स फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो ये आपको समझना जरूरी है. आई विल गिव यू अ ट्रिक आल्सो to find out whether the particular compound is primary, secondary or tertiary. Now if you see this, there is this classification which is primary, secondary and tertiary. अब I'll start my pointer. आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ. जहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप या जहां पर भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, हियर C is not a substituent, not a functional group, CH3 is not a substituent, not a functional group, but Cl is a substituent. So जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जहां लगा है वहां पे आप ट्री, बचपन में आपको ड्राइंग टीचर्स ने इस टाइप का ट्री बनाना सिखाया था, तो आपको ये वाला ट्री ट्रंक बनाना है जहां पर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं. तो मैं ये ट्री ट्रंक लगा रही हूं and I see only one chain going out, only one chain. H is not a chain, please understand, H is not a chain, only carbon is a chain thing. So you see only जो tree है वो एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा उग रहा है, जबकि in secondary if you see there is one branch and there is another branch. So there are two branches which are coming from this trunk, and I'm going very slow so that you all understand. Just pay attention to what am I doing. Here I have one branch, another branch and another branch. Since here I have one branch, it's called primary. Since here I have two branches, it's called secondary. And since here I have 3 branches, it's called tertiary. 1 degree, 2 degree, 3 degree is a shortcut method to understand or to represent primary, secondary and tertiary. आपको branches का concept समझ में आता है. We have done it in class 11th. So when you have a single carbon chain, it is primary. No branches, no carbon things are coming out. It's a straight chain. So जहां भी आपका फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दैट बिकम्स द ट्रंक, एंड आप उसका एक ट्री बना दीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं एक ब्रांच और निकल के आ रही है तो वो सेकेंडरी हो गया. अगर आपको लगता है 2 निकल के आ रही है तो टर्शरी होता है. अब आप ध्यान से देखिए, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, you can never have 4 branches coming out, क्योंकि फोर्थ साइड तो आपका फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, which is the trunk. So the maximum classification you have is primary either or secondary or tertiary, and that's written very clearly नीचे भी. Only one CH3 is attached, only 2 CH3 is attached, or only 3 CH3 is attached. So वो जो मैंने 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 लिखा है, उसको मैंने आपको ट्रंक के ब्रांचेस की फॉर्म में ड्रॉ करके भी दिखा दिया. आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर एंड यू पीपल हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. Yes, ma'am. Yes. Yeah, because this is very important. जहां भी आपको लगे मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. अच्छा, एक डाउट हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है, मैम अगर Cl के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा है
तो अगेन यू विल गो टू द प्रायोरिटी ऑर्डर. जैसे अगर Cl लगाए और COH भी लगाए तो हु इज मोर प्रायर? COH. तो जहां COH लगा है वो आपका ट्रंक हो गया. अब वहां से देखो कहां कहां से कार्बन निकल रहा है. अगर कार्बन एक ही जगह से निकल रहा है प्राइमरी, 2 जगह से निकल रहा है सेकेंडरी, 3 जगह से निकल रहा है टर्शरी. फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे हम ब्रांचेस नहीं करते. ब्रांचेस हमेशा कार्बन के बेसिस पर होती है, जिसको आप एल्काइल ग्रुप्स बोलते हो. सो टू बी मोर fluent in science terms, I would say that the functional group is the trunk and it is going to symbolize the branches as the alkyl groups. So जितने आपके alkyl groups फैले हुए हैं उसके हिसाब से आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिसाइड होता है. और ये क्लासिफिकेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है. यहाँ सारे कार्बन जो आप देख रहे हो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. जो सेंटर वाला भी है, जो CCl वाला है, यानी क्लोरीन के साथ जो कार्बन लगा, इवन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सो उसके पास H नहीं है, but still it is sp3 hybridized. Why? Because the 3H that it should have, it has given away those 3H to get the alkyl groups, to have the branching. So even that carbon is sp3 hybridized. That you have to understand. Okay, now even in double bond, when we have some double bond in the haloalkanes, the carbon can be sp3. Though we say that CH2 है तो sp2 होगा, या double bond है तो sp2 होगा, but there are certain compounds जहां पर कार्बन में double bond होने के बावजूद भी वो sp3 hybridized होता है. Let us have a look how. This type of compound is called allylic haloalkane. ये word again अभी हम सारा पढ़ेंगे इसको भी. allylic and vinylic अभी मैं आपको कराऊंगी, and aryl and benzylic अभी मैं आपको कराऊंगी. Please keep your books open, क्योंकि मैं जो example आपको यहाँ दूंगी उसको आप अपनी books के साथ भी relate करते रहना. So we are doing this classification of allylic haloalkane. अब allylic haloalkane का और विनाइलिक हैलोएल्केन का फर्क बता रही हूं. आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों साथ में दे रखे हैं. एलाइलिक तब होता है जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है, बट हैलोजन इज नॉट अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन्स. दिस इज डबल बॉन्ड कार्बन एंड हैलोजन इज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ दिस. Chlorine or halogen is attached to another carbon which is saturated. So basically what I'm trying to tell you is in allylic, NCERT में देखना, in allylic you have carbon double bond carbon, then you have another carbon in between जिसको हम कबाब में हड्डी बोलते हैं. So one other carbon in between and then the halogen. So क्या होता है, अब जो हैलोजन है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच नहीं है, वो उस कबाब में हड्डी से अटैच्ड है, जिसकी वजह से वो sp3 होता है. अब विनाइलिक अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इन विनाइलिक यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नो कबाब में हड्डी, एंड द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. आर यू एबल टू फाइंड इट आउट? समझ में आया? So that one is sp2. That one is sp2. विनाइलिक is sp2. एलाइलिक is sp3. ठीक है. सो आप उस तरीके से उसको सिंबलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड उस तरीके से हम इसको समझते हैं. अब ये आपका अगेन बेंजाइलिक है. बेंजाइलिक में भी जो चीज मैंने एलाइलिक में बताई वो एलिफैटिक चेन थी. अब आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक समझ में आता है. सो एलाइलिक जो था वो एलिफैटिक में था. ओके. बेंजाइलिक जो है वो एरोमेटिक में होगा. काम सेम है. काम सेम कैसे है, मैं आपको रिंग ना दिखा के बॉन्ड्स दिखा रही हूँ. सेम कंपाउंड, रिंग नहीं दिखा रही हूँ. ठीक है. अब इसमें आप अगर देखोगे, आई एम जस्ट शोइंग CCl. ठीक है. CH2 नहीं बना रही हूँ बिकॉज स्पेस भी नहीं है. अब आप यहाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बीच में कबाब में हड्डी, एंड देन द हैलोजन. Isn't it the allylic thing? Isn't it the allylic thing? Yes, है ना? हाँ. Yes, बट क्योंकि अब ये बेंजीन में है इसलिए अब हम इसे एलाइलिक नहीं बोल सकते. है ये एलाइलिक वाला कॉन्सेप्ट ही. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन देयर इज अनदर कार्बन इन बिटवीन, देन द हैलोजन. सो इट्स नॉट allylic. It's similar to allylic. Since it is in benzene, we call it benzylic. Okay. So here the carbons to which the halogen is attached is sp3 because it is not having any kind of double bond in between. It is very saturated, it is very nice, and that is why allylic and benzylic both will give you
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉर्मेशंस, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और एलाइलिक और बेंजाइलिक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सो आपको वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे. कमिंग टू sp2 विनाइलिक, इधर अब आप देख सकते हैं यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नो कबाब में हड्डी, and the halogen is attached to an unsaturated carbon. If it's attached to unsaturated carbon, the hybridization automatically becomes sp2, and as a result we have this vinylic thing. Of course iske alawa we have again aryl thing also. Aryl में again you have the same thing जो vinylic में है, आप अपनी बुक से भी कंपेयर कर सकते हो. And the X is here. So what's happening? This is C, and no kebab mein haddi. Halogen is attached to a carbon which is doubly bonded. So you have aryl. So we have two classifications majorly on the basis of hybridization. Primary, secondary, tertiary आपको समझ आ गया. Mono, di, tri आपको समझ आ गया. On the basis of hybridization we have allylic, when we have carbon double bond carbon but बीच में a kebab में हड्डी and then the halogen. ठीक है. एंड सिमिलरली जब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बीच में कबाब में हड्डी एंड सम फंक्शनल ग्रुप. सो दैट्स हाउ एलाइलिक इज. सो अगर हम अल्कोहल फैमिली की बात करेंगे तो एलाइलिक अल्कोहल, अभी हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो एलाइलिक हैलोएल्केन्स. जब हम कीटोन्स की बात करेंगे तो एलाइलिक कीटोन्स, एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो एलाइलिक एल्डिहाइड्स. दैट्स हाउ द क्लासिफिकेशन इज डन. ओके. बेंजाइलिक में you have benzene, then there is some carbon thing, then there is a halogen or something. So that's why it's called benzylic. Vinylic में you have carbon double bond carbon, then you have halogen. So it's no kebab mein haddi. There is unsaturation. Because of unsaturation, it's sp2 hybridized, and ultimately, similarly, in the benzene ring we have aryl. So there are these four classifications which are given in your book, and I'm sure you have understood that very nicely, right? Let's do the nomenclature now. When we do the nomenclature of this, I have already told you in class 11, the chapter's name is haloalkane. So of course you have to name the halogen first, leave it with the O, and then write the parent chain. So this one is a very simple one. If you can see, ये brackets आपको समझ आते हैं. This is written in a condensed form. If you remember, हम लोगों ने expanded form, condensed form, bond line forms class 11th में किए थे. That's why I said just go through the class 11th वाला organic also when your exams got over, because all of that is connected to class 11th. So you can see that there is CH3, CH2, CH के ऊपर Cl लगा हुआ है, and then you have CH3. So the rule is you have to locate the longest carbon chain, and the longest carbon chain is of 4 carbons. Since it's for 4 carbons, we have butane, because no double bond, triple bond, so it is a saturated one, so it's butane. And second number पे chloro है. क्यों? अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो it comes at 3rd position. अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो it comes at 2nd position. So I'll write it as 2-chlorobutane. I will not write it as butane chloride. No. ब्यूटाइल क्लोराइड हम लिखते हैं बट वो जनरल फॉर्म में लिखते हैं. सो द नॉमेनक्लेचर हैज टू बी IUPAC and it has to be 2-chlorobutane. Similarly, when you expand this, अभी शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा ठीक से, so you know अगर नहीं एकदम से समझ आ रहा है तो you can just expand it and you can very clearly see कि इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है, ब्रोमीन लगा हुआ है, and you have 2 मिथाइल ग्रुप्स ऊपर नीचे, बिकॉज हियर इट्स 3CH3 ना, तो एक इस कार्बन पे एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है और एक इधर लगा है. सो यू हैव 3 कार्बन्स लाइक दिस, राइट? सो यू हैव 3 का चेन, सो दैट बिकम्स प्रोपेन. देन यू हैव 2 पे, क्योंकि ये तो नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन पे यू हैव 2 डाइमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल and 1 bromo, because counting has to start from the substituent or the functional group. So we write 1 bromo 2 dimethyl propane. अगर मैं इस तरफ से जाती तो मेरा ब्रोमीन 3 पर आता, तो 2 + 2 + 3 locant number बढ़ जाता. So I will definitely go from this side, because when I go this side then automatically my locant number is different. Similarly, there are some these compounds, like suppose अब मैं आपको कुछ unsaturated compounds दे देती हूँ, तो again you will locate the same thing. कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड है, so it has to be ethene. Now ethene है तो
क्लोरोइथीन। आप चाहें तो आप इसे 1 क्लोरोइथीन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि टर्मिनल पे क्लोरीन होता है और 1 पे होता है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली अगेन हियर यू हैव CH2, CH, CH2. So you have 3 carbons. 3 carbon में आपके पास double bond है. So it's propene, and then is propene में you have bromine attached. So ultimately we write it as 3 bromopropene. अब हमने यहाँ 3 bromopropene क्यों किया? Because again class 11 में हमने ये चीज करी थी कि alkenes और alkynes फिर भी नॉमेनक्लेचर के प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं, बट हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स में नहीं आता है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर की चेन में नहीं आता है. सो इफ इट्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, we are going to give preference to them. So since it's a double bond, the preference will be given to this, and locant number या position number has to be lowest. So इसलिए हम यहाँ पर उसको 3 bromopropene लिख रहे हैं and not 1 bromopropene, right? So ये चीज clarify करने की जरूरत है. Okay. Nomenclature is all done. We will do the exercise and all. I'll give you B to do that. Let us proceed to what CX bond is, and after that we will do the nomenclature. Now this CX bond, what is this CX bond? अभी तक आपको जितना भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया है, हम बार बार या तो CCl दिखा रहे हैं, या CBr दिखा रहे हैं, CI दिखा रहे हैं, CF दिखा रहे हैं. Even it's allylic, we have a CCl bond or CX bond. Even if it's vinylic, benzylic, aryl, primary, secondary, tertiary, whatever classification you take, you have got CX bond because the chapter is based on that. Now you understand I have given things in highlighted mode. तो आपको वो words pick करने हैं, आपको वो points pick करने हैं और वो अपने डिक्शनरी में add करना है क्या, क्योंकि जब ये explanation पूछा जाएगा, reasoning based questions आएंगे, तो you have to ensure that these words are there, right? Now what is the nature of CX bond? What is so special about CX bond? Yeah, why is CX bond like that? So it's because जो halogen है, it's the most electronegative species, right? चाहे आप inorganic reactions की बात करो, चाहे आप organic reactions की बात करो, halogens are the most electronegative ones. Since they are most electronegative ones and carbon is not that electronegative, it is kind of a compound or element जो आपको +4 या -4 दोनों देता है. बट इन एनी केस +4 और -4 दोनों ही सिचुएशन इजी नहीं है. इफ यू आस्क somebody to give 4 things, it's not easy, and if you even ask somebody to ask for 4 things, it's again not easy. So we don't categorize carbon as electronegative or electropositive because it's tetravalent. But when it is attached to some electronegative thing or electropositive thing, तो automatically वो एक थोड़ा सा partial character उसके अंदर आ ही जाता है. So halogens are more electronegative, and as a result, because X तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा नहीं और X कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा, somewhere it is definitely going to polarize the other carbon, right? So X attains the negative charge. Now carbon is a little apprehensive and a little shy about this, and he says नहीं यार मेरे को चार्ज नहीं चाहिए, मैं तो अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ खुश हूँ, तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, मैं तुझे अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ. बट हैलोजन इज वेरी एडमेंट, वो कह रहा है नहीं मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं तो चार्ज ही लूंगा, मुझे तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना है. So when it attains a negative charge over it, automatically, sorry, so it attains a negative charge over it. Since carbon is little apprehensive, X के ऊपर पूरा negative charge नहीं आता है, जो charge X पर आता है that's partial negative charge. So that's why you see I have drawn this delta sign. ये delta sign का मतलब होता है partial. So X attains this partial delta negative and carbon attains partial delta positive. So the nature of this bond is polar. Of course, it's polar, but the polarity is partial. So you have partial positive character on carbon and partial negative character on the halogen, and that's definitely because of the carbon and halogen bond, where halogen is highly electronegative and carbon is not that electropositive. So automatically there is a restriction or resistance, and all of that makes the organic compounds a little
चार्ज्ड पार्शियली. सो आगे भी आप जब आप कंपाउंड्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन पर हम कभी भी प्लस चार्ज लगा के नहीं रखते. कार्बन पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उसके साथ जो स्पीशीज लगी हैं फिर उन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है. कार्बन इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट प्ले करता है, एंड वी कैन कॉल दैट ही इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन. वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने शेयर्स नहीं देता है और दूसरे के शेयर्स भी हथियाने की कोशिश करता है. सो ही दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दैट्स द मेजर थिंग. अगर वो अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, +4 बन जाएगा, तो वो तो गया काम से. सो ही इज नॉट दैट कच्चा खिलाड़ी. ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर एंड ही सेज नहीं, मैं सारा नहीं दूंगा, चाहिए तो पार्शियल लो वरना मत लो. दैट्स ऑल ही यू नो सेज, राइट. और कोई अगर नहीं दे सकता है, उसको किसी की हालत बहुत बुरी है, चार्ज नहीं दे सकता है, तो वो कहता है ठीक है फ्री रेडिकल बन जाते हैं. उसके पास फ्री रेडिकल बनाने का भी ऑप्शन है. सो ही इज कैरिंग लड्डू इन बोथ द हैंड्स एंड ही सेज ओके ठीक है, आयनिक नहीं बनाना, पोलर नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फ्री रेडिकल बना लेते हैं. सो दैट्स व्हाई कार्बन इज वेरी वेरी स्मार्ट. ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी रिच also because he has got so many friends. Everybody wants to do friendship with carbon, be it halogen, be it hydrogen, be it oxygen, everyone. So he's the charm of organic chemistry and that's why we call him the king of organic chemistry. Okay, चलो, hope थोड़ा सा different अच्छा लग रहा होगा. Okay, so now we'll do the preparation. अब हम इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी चीजें समझ रहे हैं, so उसको प्रिपेयर भी तो करना है. एलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन समझ लिया, उसका नेचर समझ लिया, अब उसको प्रिपेयर करने का टाइम आया है. एंड प्रिपरेशन ऑलवेज हैपेंस in lab. So even if it's commercial preparation, there has to be a lab. Even if it's a laboratory preparation, there has to be a lab. एक चीज मैं यहाँ पर इसके लिए क्लियर करना चाहती हूँ. ये जो मैंने डॉट्स लगाए, ये डॉट्स सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लगाए हैं कि कहाँ से कहाँ क्या चीज जा रही है. जब आप एग्जाम में लिखेंगे या नॉर्मली लिखेंगे तो आप ये बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ठीक है. डॉट्स कभी नहीं लगाना है, ये डॉट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए. तो मैंने डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे दिया है. This is just for the class to make you understand how the reaction is happening so that I can show you what is going, where is going, etc, etc, etc. So the very easy reaction or preparation, ये सब आपको ना पता होनी चाहिए क्योंकि हम conversions करेंगे. So conversion में suppose I give you a conversion कि आप मुझे butanol to chlorobutane बना के दो, butanol to chlorobutane. So you are going to use the reactions. So alcohols are ROH, the general form is ROH, and it is attached to the HX. Now here X का कोई categorization नहीं है. Your X can be F, your X can be Cl, Br, I, anything. Now when you have this reaction, ROH के साथ जैसे आपने HX को डाला, this water is going to be lost and you are going to get the RX. The reaction occurs in the presence of a catalyst which is called ZnCl2. That's why it's there in the arrow. अब वो arrow के ऊपर ना type तो नहीं हो सकता और मैं text box नहीं लगाना चाहती थी, so I've written it in the middle. So you see the arrow is going through ZnCl2. उसका मतलब है कि ZnCl2 is a catalyst. So ROH when reacts with HX gives you RX. Similarly, when ROH reacts with NaBr, now you know here Br is specifically written, तो आपकी ये reaction सिर्फ bromine products ही दे सकती है. You will not get chlorine or iodine or any of those products. Okay, so that's why I'm giving you this. Now another reaction we have is ROH with PX3. Now in PX3 also we have this option that X can be either Cl or Br. Phosphorus के साथ फ्लोरीन और आयोडीन बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं because phosphorus has a bulky size and fluorine is a very small sized one, less reactivity, and iodine is very bulky and very reactive. So दोनों ही extreme reactivities होने की वजह से they do not react. Another reasoning based question. So Cl and Br is manageable. So that's why this reaction, the third one, occurs with Cl and Br. The last one PCl5 because we do not have PF5 or PBr5 or PI5. So again if you are using 5 thing यानी PCl5 आप use कर रहे हैं तो आपकी reaction सिर्फ आपको क्लोरीन कंपाउंड्स देगी. तो अगर आप ये सारी reactions learn नहीं कर सकते, वैसे तो होनी चाहिए क्योंकि complete the reaction में भी ये reaction आ सकता है, like ROH plus PX3 gives you what? So complete the reaction के लिए भी आपको learn तो करना ही पड़ेगा. पर अगर आपको एक
प्रेपरेशन के लिए दिमाग में रखनी है कि नहीं एक रिएक्शन मैम बता दो जो मेरे को बचा ले एंड माय सेवियर रिएक्शन, देन आई वुड गो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन वेयर ROH प्लस HX। अब आप X कुछ भी डालो, आपको Cl बनाना है तो HCl डाल दो, F बनाना है तो HF डाल दो, Br बनाना है तो Br डाल दो, I बनाना है तो IHI डाल दो, एंड ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट रिएक्शन। ओके, मैं आपको रिएक्शन आज ज्यादा नहीं करा रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको ना क्लासिफिकेशन करा दिया। ये सिर्फ आपको हिंट करने के लिए था ताकि आप मेंटली तैयार हो जाओ कि ऐसी और रिएक्शंस हमारे पास आने वाली है, हमें वो सब रिएक्शन समझनी है, हमें वो सब रिएक्शंस करनी है, उनको लर्न भी रखना है क्योंकि कन्वर्जन्स आएंगे। और कन्वर्जन्स जब आएंगे, अगर आप अपनी बुक में आप देख चुके होंगे तो आपकी बुक में एक 18 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 20 कन्वर्जन्स एट अ स्ट्रेच दे रखी है, और उससे पहले राइट हैंड साइड पर भी 8, 9, 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो ये सिर्फ एक, डरा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ एक आपको हिंट दे रही हूँ कि इसलिए आपको कन्वर्जन्स दिमाग में रखने हैं। तो अगर आप नोट्स बनाने वाले नहीं हैं, लाइक इफ यू डू नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक पेपर पे आप ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वन बाय वन लिख लीजिए। नोट्स मत बनाइए, सिर्फ ये रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे ROH प्लस HX ब्रैकेट में लिख लो, ये मेरे को बचाने वाली रिएक्शन है, ये मैं कभी भी कहीं भी यूज कर सकती हूँ। ये रिएक्शन सिर्फ ब्रोमीन प्रोडक्ट्स देगी, ये रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन प्रोडक्ट्स देगी, ठीक है। आयोडीन के बहुत कम प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, सो वी डोंट इवन डिस्कस आयोडीन देयर। आयोडीन के बहुत लिमिटेड यूसेज है हमारे पास। सो दैट्स इट। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द बुक अगेन एंड वी विल डू द नॉमेनक्लेचर फर्स्ट बिकॉज आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराना जरूरी है। और उसके बाद फिर मंडे एंड टुडे आई विल गिव यू दिस होमवर्क ऑल्सो। सो अपनी होमवर्क रजिस्टर्स में आप लोग मुझे क्वेश्चंस करके देंगे and on Monday I will randomly ask you to tell me कि आपने क्या किया। Monday is होली। अरे मंडे इज होली, ओहो कोई बात नहीं, वेंसडे कर लेंगे, वेंसडे कर लेंगे। मैम नेक्स्ट पूरा वीक छुट्टी है। अरे यार मैं भूल गई, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरी से गलती हो गई। मैम नेक्स्ट वीक पूरा वीक छुट्टी क्यों है? वो एक्चुअली इसलिए बेटा क्योंकि मंडे तो वैसे भी होली है, ठीक है, एंड थर्सडे से वी हैव मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, वो गुड फ्राइडे, देन वी हैव सैटरडे, देन वी हैव ईस्टर संडे। तो उसमें सिस्टर ने कहा कि 2 दिन और छुट्टी दे दो, ट्यूसडे एंड वेंसडे, बच्चों को खुशी हो जाएगी, सो इसलिए पूरा वीक छुट्टी कर दी। Oh wow, ma'am, thank you, ma'am. अच्छा है ना, वी आर accommodating all Yes, everyone। ma'am, it's good. हाँ इट्स गुड। चलो तुम लोग के लिए भी थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, मैं भूल गई थी, आई वाज टू एक्साइटेड टू टीच यू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की मैं भूल गई। ओके, सो हियर you can see my book, you can see the book, right? Yeah. Yes, So ma'am. there, Yes, the ma'am. book is there, and in the book you can have third and secondary, neo and all. I would suggest not to write because हम usually नहीं लिखते हैं, and अगर in case still you have any doubt, तो neo is also another form of tertiary halide. So जब हम tert लिखते हैं तो हम neo भी लिख सकते हैं। neo basically क्या होता है, कार्बन होता है और उसके चारों तरफ से कार्बन चेन निकल रही होती है, तो इसलिए हम उसे नियो बोलते हैं। टर्ट में आप देखोगे तो 3 तरफ से ही निकलती है, चौथी साइड से, फोर्थ साइड यू हैव द फंक्शनल ग्रुप। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नियो एंड टर्ट। इधर आप देखो कार्बन, 3 कार्बन तो उस तरफ है और एक इधर भी है, सो दैट्स व्हाई इट्स नियो, राइट? सो इट मेक्स अ प्लस साइन। सेकेंडरी तो आपको समझ आ ही गया है। सो यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, विनाइल है, एलाइल है, उसका नाम क्या है। सो यू हैव टू गो थ्रू द IUPAC थिंग। There is another this question, ये वाला question, यहाँ पर you have the IUPAC thing, ठीक है। So the IUPAC thing में आपके पास ये सारा नामकरण उन्होंने करके आपको दे रखा है, ठीक है। Now ये just go through this and I think you will be able to do it. I'm coming back to in-text question. Here you have to draw the structures. Drawing the structures is much easier because you can place the substituent your ways, है ना, क्योंकि पेंटेन है तो आप सिंपली 5 कार्बन बना दीजिए, थर्ड पे मिथाइल डाल दो, सेकंड पे क्लोरो डाल दो, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो।
सिमिलरली 1 क्लोरो आप कर सकते हैं। सो टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल, यानी 4 कार्बन को आपको ऐसे लगाना है कि उसमें से 3 ब्रांचेस निकल रही हो, रिमेंबर दैट। सो C ऊपर CH3, नीचे CH3, यहाँ CH3, सो 3 कार्बन निकलेंगे तो वो टर्शरी ब्यूटाइल होगा, उसको आपको 4th पोजीशन पे लगाना है। सो ट्राई डूइंग दैट। एकदम से बुक मतलब प्लीज ये जैसे होमवर्क देती हूँ तो गूगल खोल के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस निकालने की प्लीज जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 1 या 2 बार खुद से करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना। उसके बाद आप ठीक है, आप गूगल पे डाल दो सॉल्यूशंस फॉर एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री, यू विल गेट इट। बट आई सजेस्ट, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने यही किया था, उनको कोई होमवर्क दिया वो सारा गूगल से कट कॉपी पेस्ट, और इस साल भी आपको पता है एनुअल एग्जाम्स में आप में से कई लोगों ने वो थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन कॉपी किया, और मैंने बहुत क्लियरली उसमें लिखा कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट, दो आई डिड नॉट रिवील दोज नेम्स एंड आई डिडंट डिस्कस ऑल ऑफ दैट एज वेल, बट वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। यू नो दीज थिंग्स डू नॉट टेक यू एनीवेयर, बिकॉज ये शॉर्टकट्स आपको काम नहीं आएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद आपके एग्जाम्स अगर ऑफलाइन मोड में हुए तो फिर कैसे करोगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज सेंस कि आप क्या कर रहे हो, खुद से कोशिश करो, पहले 1-2 बार कोशिश करो। आई डोंट से कि आप मुझे डायरेक्टली सबमिट कर दो, पहले 1-2 बार कोशिश करो, खुद को तो जज करने की कोशिश करो कि हम कितना कर सकते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो यू आर फ्री टू डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, बुक से रेफर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव नेवर आस्क्ड यू कि आप मत देखो, पर थोड़ा सा लिमिट करके, ये नहीं बस मुंह खोला, आंख खोली, लैपटॉप पे टाइप किया, गूगल पे बोला गूगल मुझे इसके आंसर्स दे दे, और गूगल ने आंसर्स दे भी दिए ओबीडियंट नौकर की तरह, और आपने वो कर लिया ना, दैट शुड नॉट बी डन, राइट? ओके, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आज अब ये करने हैं, बिकॉज आप लोगों ने खुद से बोला कि 1 वीक की छुट्टी है, सो आई नो इट्स होली, अभी मैं आपको सेलिब्रेट वो भी नहीं कर रही हूँ, फिर उसके बाद you people will have a good Friday and all, so बीच में जो Tuesday Wednesday है तब आप ये कर सकते हैं, Saturday Sunday आपके पास है तब आप ये कर सकते हैं। तो question number 1, question number 2, question number 3 is your homework, and then you are going to do the in-text question number 1 also. When you do in-text question, I suggest आप in-text question लिख के पेज नंबर भी डाल दिया करो, आपके लिए आसान होता है, क्योंकि फिर आप ढूंढते रहते हो कौन सा in-text question है, ठीक है? Question number 1 is very simple, you have to name the compound and you also have to classify them as alkyl, allyl, benzyl, vinyl, aryl, whatever it is, ठीक है? So alkyl आपको पता है सिंगल है, alkyl है तो प्राइमरी होगा, allyl में अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है तो वो बताना है, बेंजाइल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है तो वो बताना है। ये आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी alkyl में हो सकता है, allyl में हो सकता है, बेंजाइल में हो सकता है। विनाइल और एराइल में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। सो वो आप देख के इनिशियल फेज में आई वुड सजेस्ट कि ऐसे नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश मत करना, थोड़ा एक्सपैंड कर लेना, थोड़ा सा, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसे भी कर पा रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर आपकी 1-2 गलत हो जाएंगे ना तो फिर यू विल लूज होप कि हमको तो हो नहीं रहा है भाई, हमसे तो हो कुछ नहीं हो पा रहा है, हमें तो आ नहीं रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई डोंट वांट यू टू लूज दोज होप्स। इनिशियल स्टेज पे आप उसको फैला के, बॉन्ड वॉन्ड बना के, लंबा चौड़ा लिख दिखा के आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन यू कैन डू दैट, आप उसको भी ऐसी फैला के आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एंड देन यू हैव थर्ड क्वेश्चन, सो हियर यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। So these are the 3 questions that you are supposed to do, and the in-text question. So any problem till now? Any problem till now? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Where is my team screen? So here it's. ठीक है. So I have done that thing. मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट और शेयर करूंगी, सिर्फ नॉमेनक्लेचर की वो वर्कशीट है. So that I'll post it on Teams only. ठीक है, आप वहां से देखेंगे और उसको करेंगे. वो आप करेंगे क्लास वर्क नोटबुक पे. I repeat again. The in-text questions and exercise questions will go in the homework register, and the worksheet that I give you will go in the classwork register. Okay, but assignment या worksheet मैं अभी नहीं दूंगी, so please do not message me, मैम आपने दिया नहीं, आपने दिया नहीं.
वो मैं तब दूंगी जब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस विद यू, बिकॉज इस चैप्टर में मैं नॉमेनक्लेचर पे बहुत टाइम दूंगी। धीरे धीरे जब हम अल्कोहल्स फिनॉल्स वगैरह पे आएंगे तो हम नॉमेनक्लेचर पे फिर कम टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि धीरे धीरे वहां पे कंटेंट बढ़ जाएगा और नॉमेनक्लेचर इज कॉमन, यू नो, इट्स हैपनिंग सिमिलरली, बार बार हो ही रहा है। तो आप लोग खुद भी बोलोगे कि हाँ मैम अब हमें समझ आ गया, अब हमने कर लिया, पहले चैप्टर में कर लिया, दूसरे में कर लिया, तीसरे में कर लिया, अब हमें नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है, बिकॉज देन यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द फंक्शनल ग्रुप नेम, द रूल्स रिमेन द सेम, है ना। सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो आई एंड द क्लास बिकॉज थोड़ा सा मुझे वैसे हो रहा है, और एंड क्या बोलते हैं, द कंटेंट दैट आई थॉट आई विल डिस्कस वो भी मैंने कर लिया है। सो हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। बाहर बाहर ज्यादा मत जाना, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ट्राई टू स्टे एट होम, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेना, अच्छा अच्छा खा पी लेना, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल मीट ऑन 5th देन, है ना, 5th April वी विल मीट। एंड तो मैम सैटरडे क्लास नहीं है? सैटरडे मेरी क्लास तो नहीं है आपके साथ। नो, अच्छा मैम, नॉर्मली मैम ये वाली कल। तो वो तो आपकी बेटा प्रियंका मैम के साथ मॉरल साइंस होगी ना, मैम मॉरल No, साइंस ma'am, नहीं। Priyanka ma'am is not taking moral science. She doesn't. Sana ma'am takes moral. Sana ma'am will be taking moral science. हाँ तो मतलब बट आई एम नॉट टेकिंग ना, दे डिडंट गिव मी मॉरल साइंस आल्सो, नो। Ma'am, मुझे it is like, प्रियंका मैम नहीं दे रही, ले रही थी तो मुझे ही दे देते। yes, ma'am. Ma'am, कोई बात वाले